بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جی پچھلی مجلس میں ایک اور مشتقات اسم زمان و اسم مکان پہ گفتگو شروع ہو گئی تھی، اور ان کا جو معنی ہے اور فعل سے کس طرح لیے جاتے ہیں اس پہ تھوڑی بات چیت شروع ہو گئی تھی، اور ایک ایک وزن اس کے اوپر بھی بات ہو گئی تھی، دوسرے وزن پہ بات ہے، لیکن تھوڑا مراجعہ کرتے ہیں. جی اسم المکان اسم الزمان کے معنی کیا تھے؟ اسم زمان اسم مکان ایسا اسم جو اپنے ساتھ زمانے کو یا مکان کو بتاتا. جی جو فعل کے مکان یا فعل کے زمان کو زمان کو بتاتا ہو، بتاتا. یعنی جس فعل سے وہ مشتق ہوا ہے، جس فعل سے وہ نکلا ہے، جی تو یہ صیغہ جو ہے اس فعل کی جگہ کو بتائے گا یا اس فعل کے وقت کو بتائے گا. وقت ہو رہا ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے زمانہ جو ہم نے فعل سیکھا تھا مطلقاً، یعنی فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، یہ وہ نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت وہ فعل ہونا مراد ہے. جی جس طرح مکان جب آتا ہے تو اس وقت وہ جگہ مراد ہوتی ہے جس کا اس فعل سے تعلق ہوتا ہے، جس طرح ہم نے مثالیں بھی دیکھی تھی. جی پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شیخ نے بتایا تھا کہ ثلاثی سے اس کے دو ہی وزن ہیں. کون کون سے؟ ثلاثی دو وقت ہوتا ہے. ایک میم کیا ہوتا ہے نا؟ مفعل مفعل. مفعل مفعل اور ہاں مفعیلون. ہاں اور مفعل. ایک ہے بفتح العین اور ایک ہے بکسر العین. عشرین. مفعل اور مفعل یہ دو وزن پہ آتا ہے. اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں زمان ہے یا اس میں مکان ہے، کیونکہ وزن تو ایک ہی ہے، لیکن سیاق و سباق سے آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ یہ زمانے کے لیے آئے ہیں یا پھر یہ مکان کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر بعد میں ایک شیخ نے اغلبیت کے طور پر ایک قاعدہ ذکر کیا تھا کہ جو مفعل کا وزن جو ہے وہ عام طور پہ کون سی صیغوں سے آتا ہے، تو شیخ نے 4 صیغے اس میں بتا دیے تھے، جو کہ یفعلو، یفعلو، یہ سب ہم یفعل. دیکھ چکے تھے اور اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لی تھی. ہاں اور فعل ناقص سے اور مضاف سے جو آتا ہے یہ سب گزر چکا ہے، تو اس میں ہم تفصیل میں نہیں جاتے دوبارہ. اس سے آگے بڑھتے ہیں ابھی انشاءاللہ، آگے پڑھتے ہیں مفعل کے وزن پہ. جی مفعل پڑھیں. بسم اللہ. ومفعل. ومفعل يساغ من يفعل انه يجلس في المجلس. ومن جی ومن المثال الواوي واوي ہم، انه جی وخاف في موقف. جی آگے. ويشاغان من غير ہم، الثلاثي على ہم، صورة اسم المفعول. نو مسلى جی الإيد جی والملتقى ہم، العائلة ہم، ومستصفى البلد. جی ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا وزن ہے اس میں مکان اور اس میں زمان کا، بکسر العین. پہلے ہم نے مفعل دیکھ لیا تھا جو کہ بفتح العین تھا. اب یہ دوسرا وزن ہے بکسر العین، یعنی مفعل کے وزن پہ. اور اس وہ والی بحث بھی جب آئی تھی تب ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو قواعد شیخ بتا رہے ہیں کہ یہ عام طور پر اس وزن سے لیا جاتا ہے یا اس وزن سے لیا جاتا ہے، یہ اغلبیت کے طور پر ہے، یعنی یہ ہمیشگی کے طور پر نہیں ہے، اغلبیت کے طور پر ہے. کبھی یہ اس وزن سے بھی آ سکتا ہے اور کبھی اس میں بھی آئے، تو ایسا ہوتا ہے. تو نحو اور صرف کے عام طور پہ جو قواعد ہیں وہ اغلبیت کے طور پہ بنائے گئے ہیں. تو ابھی جو دوسرا وزن ہے مفعل کا وزن جو ہے، یہ شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے جو ہے اس کے لیے باقی اوزان ہیں. عام طور پر مفعل کا وزن جو ہے بکسر العین فلہ الباقی، یعنی ہم نے اوپر جتنے اوزان ذکر کیے ہیں، یفعلو کا، یفعلو کا اور فعل ناقص سے، اور باقی جو اوزان ہیں ان کے علاوہ جو ہیں اوزان جو آتے ہیں ان سے مفعل بنتا ہے. پھر شیخ کچھ مثالیں دیتے ہیں صرف ایسی اس کو واضح کرنے کے لیے، یعنی یہ نہیں بتانے کے لیے، حصر کے لیے نہیں ہے، صرف اس کی مثالیں دے رہے ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ یہ ان اوزان سے آتا ہے. مثال کے طور پر شیخ ایک وزن جو دیتے ہیں یفعلو کا وزن. یفعلو یعنی آپ کے پاس فعل مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہے تو اس سے آپ اس میں زمان اور اس میں مکان
मफ़इल के वज़न पे बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यजलिसु से आपने बनाया मजलिस। मजलिस। मजलिस, हाँ, मजलिस का क्या मतलब होता है? मजलिस का मतलब मीटिंग रूम। हाँ, मीटिंग रूम या बैठने की जगह। जी बैठने की जगह होगी ना मजलिस, जी जी जी। यानी जहाँ पे लोगों को बिठाया जाता है, तो बैठने की जगह हो गई, तो इसमें मकान हो गया। ठीक है, बैठने की जगह। इसी तरह फेल मुदारे नज़ला से यंजिलु, या यंजीलु। फेलू के वजन पे ना यंजिलु। हाँ, यंजीलु। तो उससे हाँ, उससे मंजिलिन। क्या बनेगा इसमें बनेगा। मंजिलुन। हाँ, मंजिल। हाँ, मंजिलुन। मंजिलुन उससे बनेगा, मंजिल यानी। गोल। हाँ, बिल्डिंग ना। नहीं, जो जो फेल का माना है, वही माना उसी में रहेगा हमेशा। जी जी देखिए, जी। जैसे आपने जलसा का मतलब क्या था? हाँ बैठना। जी जी। ठीक है, नजल। जलसा का माना बैठना है। फेले फेले मादी में ये फेल का माना है जलसा यानी बैठा। बैठना। ठीक है, यजलिसु का माना फेले मुदारे में वही जी वही जी माना है जलसा का माना। ठीक है, जी। तो जब आप इसमें ज़मान, इसमें मकान, इसमें फ़ाइल वगैरह जो बनाएंगे, तो जीम लाम सीन से जो माना बुनियादी तौर पर होता है वो उसमें वही बाकी माने। रहता है। जी जी यानी जलसा का मानी उसमें आ गया, तो मजलिस जी। का मतलब बैठने की जगह। बैठने की जगह। बस इतना उसमें फ़र्क हो गया। इसी तरह नज़ला का मतलब होता है कि उतरना। उतरना। उतरना, जी जी। नज़ला यानी उतरा, यानी नज़ला, नज़ला नज़ला अनिस तैयारत। सैयारा यानी गाड़ी से उतरा। हाँ, मिसाल के तौर पर नज़ल अनिस सैयारा, गाड़ी से उतरा, या फिर नज़ल अनिद दाब्बा यानी सवारी से उतरा। ठीक है, तो यंजिलु भी वही फेल मुतारे में वही माना, उतर रहा है या उतरेगा। तो इसी तरह मंजिल से क्या मतलब हुआ? उतरने की उतरने की जगह। जगह। हाँ, उतरने की जगह ना। हाँ, उतरने की जगह, हाँ, उतरने की जगह। जिस तरह उस आयत करीमा में आता है, नूह अलैहिस्सलाम को जो जब कश्ती में सवार हुए, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि वक़ुर रब्बी अनज़िलनी मुनज़लम मुबारक व अंत खैरुल मुनज़िलीन। यहाँ पे तो उसमें आ रहा है, इसमें फ़ाइल के वज़न पे आ रहा है, तो ये इसमें फ़ाइल है यहाँ पे वो नहीं है। वक़ुर रब्बी अनज़िलनी मुनज़लम मुबारक, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे बेहतरीन बेहतरीन उतारना, यानी बहुत अच्छे, क्योंकि पूरी दुनिया पानी से जम भर चुकी है। वह अंत खैरुल मुनजिलीन। देखिए, उसी एक फेल से कितने कितने मुश्तक़ात वहाँ पे निकलते हैं। और बेहतर, और तू सबसे बेहतरीन उतारने वाला। ये जो मुनजिलीन है, ये मफ़इल के वज़न पे नहीं है, ये क्या बोलते हैं, ये इसमें फ़ाइल के वज़न पे है, जो कि अनज़ला से मुनजिल बना है। ठीक है, ये हमने वहाँ पे देखा था। इसी तरह एक और मिसाल शेख यहाँ पे देते हैं कि आरादा से या रेदू, आरादा से या यार। रेदू, या फेलू के वजन पे, तो इससे क्या बनता है? मारिद। और मारिज। ये लफ्ज़ हम आम तौर पर जो अरबी, हाँ, जो अरबी ममालिक में रहते हैं और जो गाड़ियों के शौकीन होते हैं, वो ये लफ्ज़ बहुत देखते होंगे, मारिद। मारिद सैयारात लिखा होता है। अच्छा, जी, शोरूम। मारिद सैयारात देखा है कहीं? हाँ, शोरूम शोरूम। शोरूम बोल लें, शोरूम बोल लें, या फिर क्या बोलते हैं, शो बोल लें, यानी गाड़ियों को जहाँ पे पेश किया जाता है, जी जी। शोरूम ही बोल सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल या। में उर्दू इंग्लिश में ये होगा। या तो आम तौर पे इस पे जहाँ पे सेल भी लगी हो, तो फिर उस पे भी इस्तेमाल किया, यानी मारिद सैयारात, जहाँ पे गाड़ियाँ रखी होती हैं हाँ। दिखाने के लिए, तो वही शोरूम ही हो गया, शोरूम के माले में हो गया। तो ये मारिद सैयारात होता है। तो इसमें शेख बोलते हैं, आम तौर पर लोग इसमें गलती करके इसको मारद बोलते हैं, मारद बोलते हैं, नहीं, इसमें जो सही किरात है वो ये बोलना चाहिए कि मारद सैयारात, आइन के कसरा के से के साथ, साथ। मफ़इल के वजन, कसरा के हाँ। साथ। ठीक है, फिर इसी तरह अगला वजन है, शेख ने बताया, वह मिनल मिसाल वावी, यानी मफ़इल का वजन जो है वो फेल मुदारे अगर मिसाल वावी है, उससे भी लिया जाता है। मिसाल वावी से क्या मुराद है? मिसल ये मिसल में फिर नाकिस ना। नहीं नहीं, नाकिस तो पर गुजर गया। हाँ। मिसाल हो और वावी हो। हमने तो देखे थे कि हुरूफ इल्लत जब अलग अलग जगहों पर आते हैं, फा की जगह आए ये तो पहले सही के नाम है, आइन स्टार्टिंग की में, जगह पे। पहले वर्ब में आएगा, वर्ब के हाँ, स्टार्टिंग में आएगा। हाँ, पहले आएगा तो उसको मिसाल बोलते हैं। जी जी अगर हुरूफ इल्लत फा की जगह है तो मिसाल हो गया। जी जी। आइन की जगह है तो क्या हाँ। बोलेंगे उसको? ठीक है। हाँ। हुर- हुरूफ इल्लत अगर आइन आइन कलीमा की जगह है तो उसको अजवफ कहेंगे। अच्छा। हाँ। तो हाँ, और जो। अगर लाम की जगह पे आए तो हुरूफ इल्लत अगर लाम की जगह पे आए तो, लामुल कलिमा की जगह आए तो, अभी अभी आपने बोला।
یہ ناقص. ہاں ناقص بولیں گے، ٹھیک ہے. فا کی جگہ پہ آئے تو مثال، عین مثال. کی جگہ پہ آئے تو اجوف، اجوف. لام کی جگہ پہ آئے تو ناقص ناقص. بولتے ہیں. یہ سب ہم لے چکے ہیں، جی ہاں، جی ہاں. کتاب میں گزر چکا ہے. تو یہ مثال. مثال الواوی ہے. مثال الواوی سے مطلب یہ ہے کہ مثال کا مطلب ہوتا ہے کہ فا کلمہ جو ہے وہ حروف علت ہو، اور واوی سے مطلب کہ واو ہو، جی الف اور یا نہ ہو، جی. واو ہو. ٹھیک ہے. مثال واوی یعنی فا الکلمہ جو ہے فعل ماضی میں وہ واو ہو، مثال واوی یہ مراد ہے. مثال کے طور پہ شیخ ابھی دیتے ہیں وقفہ. وقفہ جو لفظ ہے، وقفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹاپ. ٹھہرنی جگہ. ہاں کھڑا ہونا. کھڑا ہونا. کھڑا ہونا، ٹھہرنا نہیں، جگہ نہیں. نہیں، ابھی صرف وقفہ ہاں، کا. وہ وقف کی بات ہاں کھڑا، ٹھہرنا یا کھڑا ہونا یا ہے. رکنا. ٹھیک ہے، وقفہ. اس سے فعل مضارع کیا بنے گا؟ يخفون يخافون یقف. يخافون یق یق یقف. یقف اصل میں کیا بننا چاہیے تھا؟ یوقف. يوقفون یوقف. یوقف يوقفون. بننا چاہیے تھا، لیکن حروف علت جیسے ہم آخر میں دیکھیں گے جب وہاں پہ ابدال وغیرہ یہ سب ان چیزوں کی بات ہوگی، علال کی بات ہوگی، تب وہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ واو کیوں حذف ہو جاتا ہے. اور وقفہ جو کہ یوقف بننا چاہیے تھا وہ یقف کیسے بن جاتا ہے. لیکن جب آپ اس میں زمان، اس میں مکان کے صیغے میں لے کے جائیں گے مفعل کے وزن پہ، تب وہ اپنے اصل حروف جو گرا تھا وہ واپس آ جائے گا. اس لیے وہ مفعل کے وزن پہ بن جائے گا، یعنی موقف. کیا بن جائے گا؟ موقف. اور موقف کا لفظ بھی ہم بہت دیکھتے ہیں، موقف سے کیا یا مراد ہے؟ یہ ٹھہرنے کی جگہ. ہاں ٹھہرنے کی جگہ. اور یہاں پہ عام طور پہ موقف کا لفظ مشہور ہو چکا ہے پارکنگ کے لیے. پارکنگ کے لیے. ہاں پارکنگ کے لیے، لیکن اس سے مراد صرف کار پارکنگ نہیں ہے، موقف کا مطلب ٹھہرنے کی جگہ. جی. ہم، جس موقف طرح السیارة. قیامت کے لیے بھی بولتے ہیں کہ موقف یعنی وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے سب کی، قیامت کے دن یعنی سب کے ٹھہرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. اسی طرح اور مثال شیخ دیتے ہیں ورادہ. ورادہ. ورادہ کا لفظ، ورادہ کا مطلب کسی جگہ پر آنا. آنا. عام طور پر یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ پانی کی جگہ پہ آنے کے لیے ہوتا ہے. وردا. یعنی کوئی شخص اگر پانی کہیں پہ ہے تو وہاں پہ آئے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ورادہ. جس طرح سورہ قصص میں اگر آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام جب بھاگ گئے وہ ڈر کے مارے کہ فرعون کے آدمی ان کو قتل کر دیں گے، تو وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولما ورد ماء مدین. ولما ورد، کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے مدین پانی پر، مدین میں جو وہاں پہ پانی کی جگہ تھی، چشمہ تھا یا جو بھی تھا، جب اس پہ پہنچے تو یہ ورادہ کا معنی ہوتا ہے وہاں پہ. اسی طرح پانی کی یوسف جگہ. علیہ السلام کے جب مطلب پانی جہاں پہ ہو وہاں پہ آنے کو ورادہ بولتے ہیں، ورود کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بھائی جا الی الماء، بولیں گے ورادہ الی الماء، اور کیونکہ یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاں. اور یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو وہاں پہ پھر جب وہ قافلہ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، فارسلوا واردہم، وردہ سے اس میں فاعل کا وزن کیا بن گیا؟ اس پہ فائل کا. وارد. 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 وارد اس میں فاعل کا وزن بن گیا، یعنی وارد وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے قافلے کے لیے پہلے سے آگے جاتا ہے پانی ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو اصل معنی ہے وہ باقی رہے گا، اس کو آپ اس میں فائل میں لے کے جائیں، اس میں مفعول میں لے کے جائیں، اسی حساب سے آپ نے اس کا معنی سیٹ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے فارسلوا، تو قافلے والوں نے بھیجا اپنے پانی لانے والے کو، وارد جو پہلے پانی پہ جاتا ہے اور دیکھتا ہے اور پھر اپنی قوم کو بتاتا ہے، قافلے کو بتاتا ہے کہ ادھر پانی ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بچہ ہے، فارسلوا واردہم فعدل دلوہ قال ابو شہادہ غلام. ٹھیک ہے. تو ورادہ سے بھی آپ جب اس میں مضارع بنائیں گے تو یورد بنے گا، لیکن وہ یرید بن جاتا ہے، واو گر جاتا ہے، یریدو ورادہ یریدو. تو اس سے اس میں مفعول کے وزن پہ کیا بنے گا؟ مورد. 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 ٹھیک ہے. اور معنی ویسی آپ کریں، یعنی اصل جو لفظ ہم نے بتا دیا. اسی فائدہ یہی ہے یہ سارے قواعد سیکھنے کا کہ یہ سب وزن کے حساب سے آپ اس کا معنی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور مثال واوی شیخ نے دی ہے وعدہ سے. وعدہ. وعدہ. وعدہ سے کیا مراد ہے؟ اور یہ دیکھیں یہ ساری مثالیں کیا مثالیں واوی ہیں، سب میں یہ. فاؤل کلمہ واو ہے، ہاں جی. وعدہ کرنا. سب میں فاؤل ہمیشہ. کلمہ وا ہے، وہ ہمیں ہاں وعدہ کیا. ٹھیک ہے. وعدہ یعنی وعدہ کرنا،
इसी से इसका जो है फिल मुदारे क्या बनेगा, वाव को गिरा के? यईदु। हाँ, यईदु यानी वादा कर रहा है या वादा करेगा। ठीक है, तो इससे मफ़इल का वजन क्या बन गया? मौइदिन। मौइद, मौइद यानी वादे का वक्त। ये आमतौर इसमें मकान के लिए नहीं, ये ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी वादे का वक्त। ठीक है, और ये मौइद का लफ्ज़ आप आमतौर पर सुनते भी होंगे, अरब बहुत इस्तेमाल करते हैं। किस किस माने में इस्तेमाल करते हैं? कोर्ट के लिए। मौइद अपॉइंटमेंट के लिए। अपॉइंटमेंट के लिए, अच्छा। हाँ, मौइद, हाँ, अच्छा। अपॉइंटमेंट के लिए, यानी अपॉइंटमेंट वही हो गया ना कि वादा है कि भाई हाँ मीटिंग है या अपॉइंटमेंट है। हाँ, तो उसके लिए मौइद, हिंदी मौइद यानी मेरा अपॉइंटमेंट है, तो ये वो इसमें ज़मानी यानी वादे का वक्त मुकर्रर है। इसी तरह डॉक्टर से भी अपॉइंटमेंट तो बोलते हैं मौइद मा तबीब, यानी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो ये हाँ। आमतौर पर ज़माने के लिए इस्तेमाल होता है। कुरान अपॉइंटमेंट। मजीद में भी ये मुख्तलिफ जगहों पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक मकाम पर जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, क़ाल या कौमी अलम यइदकुम रब्बुकुम वअदन हसना। देखिए वादा से कितने लफ्ज़ यहाँ पे आ रहा है, क़ाल या कौमी अलम यइदकुम, यहाँ पे पहले मुदारे में आया यइदकुम, वाव गिर गया ना, वादा से यईदु बनना था, यईद, यईद बनता है फिल मुदारे में, यईदु। अलम, लम की वजह से आखिर में मजूम हो गया, अलम यईदकुम रब्बुकुम वअदन हसना, वअदन यहाँ पे इसका मसदर आया। अफ़ताल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल्ल अलैकुम गज़बुम मिन रब्बिकुम फ़अख़लफ़्तुम मौईदी, मौईदी यानी मेरा जो वक्त था वादे का मुकर्रर था, क्या वो तुमने उसकी मुखालफत कर दी? इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम एक और मकाम पर सूरत ताहा में ये फरमाते हैं, क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, यानी फ़िरौन ने जब कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम तो ये जादू लेके आए हो, हम भी जादूगरों को जमा करेंगे, तो हमारे और अपने बीच में एक वक्त मुकर्रर कर दो, हम उस वक्त आए और दोनों आके जादू दिखाएं अपना, नाउजुबिल्लाह। फिर उन्होंने कहा, तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीना, तुम्हारे वादे का वक्त जो है वो जीनत का दिन है। उसके बारे में मौलाना वो ये बताते हैं उनका कोई ख़ास दिन था जहाँ पे लोग जमा भी होते थे, और मूसा अलैहि सलाम ने उनको सुबह सुबह वहाँ पे बुलाया, क़ाल मौइदुकुम यौमुज़्ज़ीनति व अन युहशर अन्नास दुहा, सुबह सुबह के वक्त वहाँ पे लोगों को जमा कर लिया जाए। तो मौइद का लफ्ज़ का मतलब कि वह वक्त है कि वादे का वक्त, ये आमतौर पर इसमें ज़मान के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, वाज़ेह हो गया ये? जी जी। जी। इसके बाद शेख ये बताते हैं कि यहाँ पे जो शेख ने एक यानी आम आम जो आम तौर पर जिन औज़ान से इसमें मकान, इसमें और इसमें ज़मान तुलाती से आता है उसके बारे में बता दिया, जो कि या तो मफ़अल या तो मफ़इल के वज़न पे आएगा तुलाती से। अब गैर सुलासी के बारे में शेख बात कर रहे हैं, फ़युसागानी मिन गैर सुलासी, यानी गैर सुलासी से जो इसमें ज़मान और इसमें मकान निकलेंगे, तो वो मफ़अल और मफ़इल के वज़न पे नहीं बल्कि किसकी सूरत में निकलेंगे, अला सूरति इस्मिल मफ़ऊल, इसमें इसमें मफ़ूल की शक्ल में आएंगे। स्क्रीन आ रहा है ना आपके पास? जी जी, आ रहा है। जी, इसमें मफ़ूल की शक्ल में निकलेंगे, और इसमें मफ़ूल कैसे बनाया जाता है? इसमें इसमें मफूल वो गैर सुलाती असल से। शिका इसमें मफूल शिकल से ना, गैर सुलासी ना, जी गैर सुलासी। मीम के हाँ, पहले उसको हाँ, फेल को मुदारे में लेके जाके मुदारे का मीम या आधे को सही, हटा देंगे, और उसको मीम मीम मदमू मीम की दम्मा के साथ आएंगे, और ठीक आखिरी है, बिल्कुल सही। फतह कबल आखिर को फतह देंगे। फतह दे देंगे, हाँ ये हो गया इसमें मफूल बनाने का तरीका। तो गैर सुलासी से अगर आपने इसमें ज़मान इसमें मकान बनाना है तो उसका भी यही तरीका है, जिस तरह आपने बनाया, आप इसमें मफूल की शक्ल ले आएंगे और उसी से ये बन जाएगा। ठीक है, हाँ। जिस तरह शेख ने यहाँ पे मिसाल दी है मुसल्लल ईद, मुसल्लल ईद। अभी मुसल्लल ईद इसमें से जो आपने भी कायदा बताया आपने मुझे, तो उसमें से आप मीम को हटा दें। ठीक है, और मुझे बताएं कि असल फेल क्या था इसका? यशल्ला। नहीं नहीं, सिर्फ मीम को हटा दें, असल फेल जो फेल मादी में था वो क्या बनेगा? ये सल्ला। हाँ, सल्ला, सल्ला यानी नमाज पढ़ लिया, पढ़ने की, नमाज सल्ला पढ़ने। यानी पढ़ लिया। हाँ, सल्ला, सल्ला से फेल मुदारे क्या बनते हैं?
युसल्ली, लू हाँ युसल्ली, नहीं नहीं युसल्ली। युसल्ली, हाँ, सल्ला युसल्ली, युसल्ली। युसल्ली, ठीक है। सल्ला से युसल्ली, तो उससे अब आप इसमें इसमें मफूल में लेके जाएंगे तो अलामत मुदारे को आपने हटा दिया, मीम मदमूमा लगा दिया, और कब्ल आखिर जो लाम था और यहाँ पे कसरा था, उसमें उसमें जी। आपने फतह दे दिया, तो क्या बन गया, मुसल्ला। युसल युसल्ली था मुसल्ला, अल्लाह। और या जो था उसको अलिफ में तब्दील हो गया तो मुसल्ला हो गया। तो मुसल्ला से क्या मुराद, नमाज पढ़ने की जगह। नमाज पढ़ने की जगह, इसमें मकान हो गया, ठीक है। मुसल्लल ईद यानी ईद की नमाज पढ़ने की नमाज जगह। पढ़ने की जगह। हाँ, तो ये गैर सुलासी से, ये किससे लिया गया है, असल फेल इसका कितने हरूफ पर मुश्तमिल है, सल्ला, 4। हम्म, हाँ चार पर, सौद, दो दफा लाम है, लाम, और आखिर में अलिफ मकसूरा है, अली लेकिन असल मकसूरा। में ये या था, असल में ये या था जिसको एलाल की बुनियाद पर इन्होंने अलिफ कर दिया है मादी में, लेकिन जब आप मुदारे में जाते हैं तो वो या वापस आ जाता है, इसलिए सल्ला युसल्ली बनता है। ठीक है, वो आगे आएगा इंशाल्लाह जब हम बाबुल एलाल वल इब्दाल में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह मुल्तका, मुल्तका का लफ्ज़ है, इसका बताएं, इसका असल क्या था, इसका फेल मादी। लतखा, हाँ, लतखा, लतखा। नहीं नहीं, आप जो मीम लगाते हैं वो हरफ मुदारे की जगह लगाते हैं, जब मीम को हटा देंगे, ठीक है, तो फिर उसके उसके पीछे कहीं पे कुछ रहेगा, अगर अगला हुरूफ साकिन ना हो तो, अगर अगला हुरूफ साकिन है तो उसके पीछे कुछ होना चाहिए, नहीं तो उसको जी कैसे जी पढ़ें, जी जैसे जी मुसल्ला में था, जी आप जी जी। मीम को हटा दें तो आप साथ में पढ़ सकते हैं, लेकिन मुल्तका में तो ये साकिन है, तो हाँ साकिन से तो शुरुआत नहीं हो सकती है, जी। इसलिए इसका है इल्तका। हाँ, इल्तखा। इल्तका हाँ, इल्तका यल्तकी, पहले मुदारे इल्तखा के यल्तखा। यल्तकी, हाँ, हाँ हाँ, तो उससे तो उससे इसमें मफूल आपने बनाया मुल्तका, इल्तखा। ठीक है, हाँ, और वही माना सब में बात किया रहता है, इल्तका का मतलब मुलाकात करना, मुलाकात करना। मुलाकात करना, तो मुल्तका क्या हो गया, मेरा प्लेस ऑफ मीटिंग। हाँ मेरा। हाँ, मुल्तका यानी मुलाकात की जगह। मुल्तकल आइला, यहाँ जहाँ पे सारी फैमिलियाँ आपस में मिलती हैं, और ये लफ्ज़ हम देख चुके हैं, एक एक जगह का नाम था मुल्तकल आइला, यानी फैमिली गैदरिंग उसको बोलते थे, हाँ देखे ना, हाँ। मशहूर वो जगह एक थी हाँ हाँ हाँ, उसका ये नाम था मुल्तकल आइला, वहाँ पे मतलब झूले वगैरह बनाए थे सब कुछ, यानी सारी फैमिलीज आके यहाँ पे आपस में मिले, एक दूसरे से मुलाकात करें, ठीक है। इसी तरह अगली मिसाल शेख ने दी है, मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा का क्या है असल मादी, इस्तगफा, इस्तगफा। इस्तशफ़ा, हाँ इस्तशफ़ा, इस्तशफ़ा का मतलब होता है कि शफ़ा तलब करना, क्योंकि आम तौर पर किसी भी फेल के शुरू में आप अलिफ सीन और ता लगा देते हैं, उसका मतलब होता है तलब करना। जिस तरह पहले भी हम देख चुके हैं, अगर आप तामा है, खाना, खाना जिससे मुराद है, इस्तामा बोलेंगे तो मतलब खाना मांगना, सक़ा है मतलब पानी पीना जिससे मुराद है, इस्तस्का बोलेंगे तो मतलब पानी मांगना, ठीक है। इसी तरह शफ़ा है, शफ़ा मतलब शफ़ा तलब, शफ़ा यानी शफ़ा याब हो जाना, तो अगर आप इससे पहले अलिफ सीन क्या लगा देते तो मतलब हो जाता है शफ़ा तलब करना, ठीक है। इस्तशफ़ा यस्तशफ़ी, और इसमें बस मफूल का सीगा बस। मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा से मुराद क्या हो गया, ऐसी जगह जहाँ पे शफ़ा तलब की जाए, यानी ठीक है। इलाज तलब किया जाए, हाँ, इलाज तलब किया जाए, और जो आम फहम में इसको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल, तो वही हो गया माना।